Hello students, today I am going to discuss about behavioral approach of counseling. Behavioral approach जो है ये basically learning approach है and it focuses on the learned behavior and the environment is the main focus of the all type of learning, whether it is faulty learning or healthy learning. So learning is the ultimate goal of this behavioral approach, and this acquired behavior is done from the learning and from the information that we are receiving from our environment. So today I am going to focus on the behavioral approach of counseling. The behavioral approach suggests that the keys to understand development or observable behavior and external stimuli in the environment. Behaviorism states all behaviors are learned through interaction with the environment through a process called conditioning. This behavior is simply a response to environmental stimuli. जैसा अभी हमने बताया था कि behavioral approach focus करता है उन सारे behaviors को जिन्हें हम देख सकते हैं, which are directly observable, और focus करता है external stimuli that are present in the environment. So according to behavioral approach, learning is behavior is the outcome of conditioning. जैसे जिसकी लर्निंग होती है, जैसे जिसकी कंडीशनिंग होती है, वैसे ही बिहेवियर लर्न कर जाता है. जैसे सपोजिंग अगर कोई बच्चा है, स्टार्टिंग से उसकी ऐसी कंडीशनिंग हुई है कि जब तक वो शैतानी नहीं करेगा मम्मी उसे चॉकलेट नहीं देगी क्योंकि उसे शैतानी का बिहेवियर ही अच्छा लगता है, तो बच्चे का वो बिहेवियर कंडीशनड होता है और वो एक नॉटी बच्चा हो जाता है, बहुत शैतान बच्चा. तो ये जो लर्निंग है इसको हम सोशली अप्रूव लर्निंग नहीं कहते हैं कि डेविएशन फ्रॉम द नॉर्म्स है. तो इस लर्निंग की हम कंडीशनिंग की हम काउंटर कंडीशनिंग भी कर सकते हैं. तो behavioral approach focuses on all the observable behavior which are the results of the learning from the external stimuli present in the environment. So in the we can unlearn the unhealthy behavior in the same way we have learned that faulty behavior. So behavioral approach focuses on the learning, conditioning and counter conditioning. John Watson and Skinner are the main propagators of behaviorism. Behaviorism rejected any reference to mind and viewed overt and observable behavior as the proper subject matter of psychology. Through the scientific study of behavior, it was hoped that laws of learning could be derived that would promote the prediction and control of behavior. So this is the summary of behaviorism, that all the overt मतलब जो बाहर का behavior है, which is observable, जिसे हम देख सकते हैं, that is the subject matter of psychology, and all behavior is learned. No focus on the innate behavior and covert behavior जो हमारे जो psychodynamic का focus है. So behaviorism is just opposite approach of psychodynamic. और ये जो साइंटिफिक अप्रोच है बिहेवियरिज्म की, ये फोकस करती है कंडीशनिंग पे और कुछ लर्निंग के लॉज पे फोकस करती है, जैसे लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज. इस टाइप से लॉज बनाने की कोशिश करती है रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. जैसे लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है कि इफ वी आर रेडी टू लर्न सम बिहेवियर वी विल लर्न दैट क्विकली. अगर हम किसी बिहेवियर को लर्न करने के लिए तैयार हैं तो अब तो हम सीखेंगे. अगर हम लर्न ही नहीं करना चाहते, हम रेजिस्टेंस है कि नो मुझे तो इसकी ओर देखना ही नहीं है, तो वो रेजिस्टेंस हमें सीखने थोड़ी ना देगी कोई बिहेवियर. और जब तक वो रेजिस्टेंस नहीं खत्म होगी, जब तक रेडीनेस नहीं आती है, तब तक यू वॉन्ट बी एबल टू अडॉप्ट एनी न्यू हेल्दी बिहेवियर. सो लॉ ऑफ रेडीनेस हो गया, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज हो गया. जिन चीजों को हम ज्यादा यूज करते हैं वो हमारे बिहेवियर में फ्रीक्वेंटली आते हैं, जिनको नहीं यूज करते हैं डिसयूज थ्योरी. So behaviorism focuses upon all overt and observable behavior that are the results of some learned process. Now, what is the main goal of behavioral therapy? The goal of behavioral therapy is usually focused on increasing the person's engagement in positive or socially reinforcing activities. Behavior therapy is a structured approach that carefully measures what the person is doing and then seeks to increase chances for positive experiences.
तो पर्सन को पॉजिटिव एंड सोशली रीइंफोर्सिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना, जिससे कि वो अपने नेगेटिव और एंटी सोशल बिहेवियर्स को भूल सके। तो सपोजिंग यहाँ जो ये 3D पिक्चर है, इससे हमें क्या शो हो रहा है कि दिस इज ऑल unhealthy learning material, and the role of counselor is to solve all these problems revolving in the mind of the client and learn the new process of healthy behavior. So the role of counselor is very crucial as far as the goal of behavior therapy is concerned. अब ये जो बिहेवियरल थेरेपी है, इसमें हमें दो चीजें पता चली कि ये प्रेजेंट पे फोकस करता है, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ओवर्ट एंड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस करता है। लेकिन जो चीजें हमने लर्न कर ली है, सपोजिंग दैट इज अ फॉल्टी लर्निंग, तो व्हाट टू डू टू लर्न अ हेल्दी बिहेवियर। अब हमारा एक, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई बच्चा शैतानी करता था तब माँ चॉकलेट देती थी या फादर चॉकलेट देते थे, तो उसकी लर्निंग वही हो गई ना, कंडीशनिंग ये हो गई कि मैं ये शैतानी करूंगा, मैं किसी को डांटूंगा, या मैं इस बदतमीजी के टोन से बोलूंगा। छोटे बच्चों के मुंह से बहुत अच्छा लगता है, तो वो बिहेवियर उसका रीइंफोर्स होता गया। लेकिन जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो वही बिहेवियर अनडिजायरेबल लगने लगता है। तो एक बार कंडीशनिंग हो गई, दैट पर्टिकुलर बिहेवियर इज लर्न एंड became the integral part of the person's personality. So now what to do? So behavioral therapists suggest a lot of behavioral therapy, and they say that we can make the pupil unlearn the faulty behavior through the counter conditioning. अब इसमें फर्स्ट टेक्निक है सिस्टमैटिक desensitization. Systematic desensitization was developed by Joseph Wolf, and it was designed for clients with phobias. This treatment follows a process of counter conditioning, meaning the association between the stimuli and the anxiety is weakened through the use of relaxation technique, anxiety hierarchy, and desensitization. तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का क्या मीनिंग होता है कि हम सिस्टमैटिकली किसी इंडिविजुअल की फियर लेवल को डिसेंसिटाइज करते हैं। अगर मान लीजिए किसी को छिपकली से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो अगर हम डायरेक्टली उसे बोल देंगे नहीं छिपकली से डरना नहीं चाहिए, ये कोई डरने की ऑब्जेक्ट नहीं, लो इसे पकड़ के दिखाओ, तो अगर उस पर्सन को फोबिया है तो ये थेरेपी हमारी उसे किसी भी सूरत में काम नहीं करेगी। तो इसके लिए सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन चाहिए, कि मतलब धीरे धीरे हम इंडिविजुअल को छिपकली के डर से डिसेंसिटाइज करें, मतलब उसकी सेंसिटिविटी को कम करेंगे। जब उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी तो पर्सन उसके ज्यादा पास जाने की हिम्मत करेगा, और वो फोबिया शायद फियर में कन्वर्ट हो पहले, और वो फियर फिर नॉर्मल बिहेवियर में कन्वर्ट हो। तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के कई स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है build a hierarchy of the anxiety arousing stimuli. The client lists all anxiety arousing stimuli such as looking at the spider, holding a spider in their hands. Supposing spider से डर लगता है, तो सबसे पहले उसको अपनी एक हायरार्की बनानी होती कि किस स्टेज में वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। सपोजिंग उसने पहला बनाया कि लुकिंग एट द स्पाइडर। अब ये लुकिंग एट द स्पाइडर में भी वेरिएशन हो सकता है कि हम डायरेक्टली उसे देख सकते हैं, कि हम टीवी पे देख सकते हैं, कि हम जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है जिसमें हम बहुत रिलाय करते हैं, हम उसके साथ बैठ के देख सकते हैं। तो हाउ टू लुक एट द स्पाइडर, तो फर्स्ट स्टेप है लुकिंग एट द स्पाइडर। अगर डर की मात्रा बहुत ज्यादा है तो हम डायरेक्टली स्पाइडर को देख भी नहीं सकते हैं, तो हम पहले प्रोजेक्टर की सहायता से किसी स्क्रीन पे उस स्पाइडर को दिखाते हैं, फिर उसके डिफरेंट पार्ट्स दिखाते हैं व्हेन द इंडिविजुअल, और जैसे ही उसको एंजाइटी होने लगती है उसको हम रिलैक्सेशन के लिए बोलते हैं, जस्ट डीप ब्रीथ करो और रिलैक्स हो। और जब इंडिविजुअल उस सिचुएशन से रिलैक्स हो जाता है तो हम हायरार्की में वी मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले है लुकिंग एट द स्पाइडर। व्हेन अ पर्सन फील्स कंफर्टेबल व्हाइल लुकिंग एट द स्पाइडर, देन द सेकंड स्टेप ऑफ द हायरार्की इज प्रोसीजर दैट इज होल्डिंग अ स्पाइडर इन देयर हैंड्स। अब होल्डिंग अ स्पाइडर इन देयर हैंड्स इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट। अब इसमें कैसे करें, पहले पेपर का पकड़ाएं, फिर प्लास्टिक का पकड़ाएं, फिर जेली का पकड़ाएं जो ज्यादा 3D इफेक्ट देता है, या पहले प्रोजेक्टर पे वो छू के देखे। तो डिपेंड करता है अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द फोबिया द पर्सन इज हैविंग। लेकिन सबका मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप दिखाएंगे, एंजाइटी अराउज होगी, और जैसे ही एंजाइटी बढ़ने लगे
इंडिविजुअल को रिलैक्सेशन थेरेपी दी जाती है कि वो उससे फील कंफर्टेबल करे, एंड व्हेन अ पर्सन फील्स कंफर्टेबल व्हाइल डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी वी मूव फर्दर इन द हायरार्की. सेकेंड स्टेप है ट्रेन द क्लाइंट इन डीप मसल रिलैक्सेशन. रिलैक्सेशन टेक्निक थॉट टू द क्लाइंट. तो फर्स्ट स्टेप में है, उसे आप देखो, देखने से एंजाइटी अरोज होगी. एंजाइटी जब बहुत ज्यादा हो जाए तो जस्ट इन्वॉल्व इन रिलैक्सेशन थेरेपी. ये रिलैक्सेशन थेरेपी कई टाइप की होती हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग हो सकती है, माइंडफुलनेस हो सकती है, या विपासना मेडिटेशन. कई टाइप की मेडिटेशनल टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम रिलैक्सेशन अचीव कर सकते हैं. थर्ड स्टेप है क्लाइंट वर्क्स थ्रू हायरार्की व्हाइल यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स. वर्क्स थ्रू हायरार्की क्या होता है? जैसे फर्स्ट स्टेप पे हमने लिखा लुकिंग एट द स्पाइडर, व्हेन आई फील कंफर्टेबल लुकिंग एट द स्पाइडर वी मूव टुवर्ड्स द सेकेंड लेवल ऑफ हायरार्की. सेकेंड लेवल ऑफ हायरार्की क्या था कि हम उसे टच करते हैं. तो टच करना तो दूसरा एक्सट्रीम हो गया. पहले हम उसे देखते हैं, फिर हम उसे पास दूर से देखेंगे, फिर पास से देखेंगे, फिर हो सकता है प्लास्टिक का देखें, फिर कागज का देखें, फिर उसके पास जाएं, फिर उसके बाद जो आर्टिफिशियल है वो हाथ में लें, फिर उसके बाद रियल दें. तो देयर आर लॉट ऑफ हायरार्की डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द फियर द पर्सन इज हैविंग. लेकिन एवरी स्टेप ऑफ हायरार्की इन्वॉल्व्स relaxation, because every step provokes anxiety in the personality of the individual, and when the individual gets panic he should be involved in the relaxation therapy. So talk about anxieties of spider and practices relaxation techniques. Step 4, used in some cases, client confronts real fear. Client is presented with a real spider and holds in his or her. ये last होता है. So this is the desensitization, ki how you are trying to desensitize the fear towards the spider of an individual. Anticipation, frenzy, fatigue, and did it. This is the last step of the desensitization. Ki ultimately the person is able to overcome his fears through the process of relaxation by the method of systematic desensitization. Second is exposure therapy. Exposure therapies are designed to expose the client to feared situations similar to that of systematic desensitization. The therapies included are in vivo desensitization and flooding. Vivo desensitization is also a type of desensitization, but its nature is different, so it comes under the category of exposure therapy. So first we'll talk about vivo desensitization. It involves the client being exposed to real life anxiety provoking situation. इसमें पहले उसे रियल लाइफ एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन के आगे लाया जाता है. सपोजिंग अ पर्सन इज अफ्रेड ऑफ lizard, then he is exposed to the real lizard, and the counselor or the psychotherapist tries to observe the pattern of the behavior of the individual who is phobic toward lizards. The client is taught relaxation technique to cope with the anxiety produced by the situation. The example of the client with the fear of lizard will be used to demonstrate in vivo desensitization. To begin with, the client would be shown a lizard in a container on the other side of the room for 1 minute. This would gradually increase in time, as well as the client getting closer to this spider or lizard, until eventually the client is able to be sitting near the spider or lizard for a prolonged period. तो इसमें क्या डिफरेंस है? विवो सेंसिटाइजेशन में हायरार्कीज थोड़ी कम हो जाती हैं. इसमें भी हायरार्की है क्योंकि पहले उसको दूर से लिजर्ड को या जो स्पाइडर है उसको कंटेनर में डाल के दिखाया जाता है, एंड वंस अ पर्सन फील कंफर्टेबल व्हाइल सीइंग इट फ्रॉम अ सर्टेन स्पेस, उसके बाद उसका डिस्टेंस थोड़ा कम किया जाता है. उसके बाद जब वो उस डिस्टेंस से भी कंफर्टेबल हो जाता है फिर उसका डिस्टेंस और डिक्रीज किया जाता है. हालांकि ये कहने में आई एम नॉट टेकिंग टू मच टाइम, बट दिस प्रोसेस टेक्स अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि जो डर, जो फोबियाज आर डीप रूटेड इन आवर पर्सनालिटी, दिस इज नॉट वेरी इजी टू अप्रूव देम इन अ सिंगल इंस्टेंस. तो ये हायरार्की विवो डिसेंसिटाइजेशन में भी होती है, लेकिन यहाँ पे द क्लाइंट इज एक्सपोज्ड टू रियल लाइफ एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन, वेदर इट इज लेजर्ड और इट इज अ स्पाइडर. नेक्स्ट,
exposure technique is a flooding. Flooding involves the client being exposed to the actual or imagined fearful situation for a prolonged period of time. The example of the client with the spider fear would be that the client would be exposed to the spider or the thought of the spider for a prolonged period of time and uses relaxation technique to cope. फ्लडिंग का क्या मतलब होता है? जैसे बाढ़ आ जाती है ना, इन द सेम वे फ्लडिंग इज यूज इन द काउंसलिंग टेक्निक. फ्लडिंग में जिस चीज से डर लगता है उसी चीज को जरूरत से ज्यादा फॉर दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस इज गिवन फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और जितने ज्यादा पीरियड के लिए आता है, हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है कि जैसे जब कोई चीज हमारे सामने से जा ही नहीं रही है तो हमारे पास क्या रह गया एक्सेप्ट टू कोप अप विद दिस. सो दिस इज द टेक्निक ऑफ फ्लडिंग कि इसमें प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए फियरफुल ऑब्जेक्ट को फेस कराया जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट इज आस्क्ड और द क्लाइंट इज आस्क्ड टू रिलैक्स. There may be ethical issues in using these techniques. Ethical issues क्यों होते हैं? जैसे किसी को मान लो कॉकरोच से बहुत फोबिया और कॉकरोच हमने डाल दिया और बहुत देर तक डाल दिया, तो हो सकता है उसके हार्ट फेल हो जाए, ये भी हो सकता है, या बेहोश हो जाए, या उसके पल्पिटेशन बहुत बढ़ जाए, तो एनीथिंग इज पॉसिबल. सो दिस फ्लडिंग टेक्निक हैज सम एथिकल इश्यूज with certain fears or traumatic events, and the client should be provided with information on the technique before utilizing them so he or she understands the process. So chunki flooding involves some ethical issues, so the client must inform beforehand what is going to be happen with him or her. मतलब काउंसलर की मॉरल ड्यूटी होती है, ये एथिकल ड्यूटी है कि वो फ्लडिंग प्रोसीजर इंप्लीमेंट करने से पहले क्लाइंट को पूरा प्रोसीजर बता दे. इफ द क्लाइंट इज फीलिंग कंफर्टेबल देन ओनली ही और शी शुड गो फॉर द फ्लडिंग प्रोसीजर, अदरवाइज इट शुड बी रिस्की. नेक्स्ट इज third type of technique is aversion therapy. First is systematic desensitization, second is exposure therapy, and now third is the aversion therapy. The most controversial of the behavioral treatments, aversion therapy, is used by therapists as a last resort to an aversive behavior. This treatment involves pairing the aversive behavior with a stimulus with an undesirable response that induces vomiting when taken with alcohol. एवर्जन थेरेपी क्या होती है? जैसे किसी को शराब पीना बहुत अच्छा लगता है, तो शराब में कुछ ऐसा केमिकल कंपाउंड मिला देते हैं कि शराब पीने के बाद उल्टी होनी शुरू हो जाती है. तो अब ये एवर्जन थेरेपी होगी. द थिंग विच वाज गिविंग अस पॉजिटिव sensation, now that particular thing, now same thing is giving us the negative sensation, क्योंकि जितनी बार ही अल्कोहल का इंटेक कर रहे हैं उतनी बार उल्टी करने भाग रहे हैं, तो दैट इज वेरी पेनफुल. तो एवर्जन थेरेपी में या दूसरा तरीका ये हो सकता है, जितनी बार हम सिगरेट को छुए उतनी बार हमें ऑटोमेटिक हमारे कुछ हाथ में इलेक्ट्रोड्स वगैरह इम्प्लांट कर दिए जाएं, जैसे ही सिगरेट छुए वैसे में इलेक्ट्रिक शॉक लगे. तो इस मतलब स्मोकिंग के लिए हम सिगरेट उठा ही नहीं पाएंगे, या जब हम स्मोकिंग करें तो फिर स्मोकिंग में जो सिगरेट होती है उसके टोबैको में कुछ हम ऐसा केमिकल डाल दें जिससे वेल्चिंग या वोमिटिंग होती रहे. मतलब एनी पॉजिटिव थिंग, जो चीज हमें पॉजिटिव सेंसेशन देती है लेकिन जो खराब है हमारे बिहेवियर के लिए, ड्रग अब्यूज, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग बिहेवियर, ये हालांकि हमें बहुत प्लेजर सेंसेशन देती है, बट ऑल दीज थिंग्स आर रिस्की फॉर द हेल्थ. तो इन पॉजिटिव प्लेजर सेंसेशन सीकिंग सेंसेशन वाली चीजों को जब हम निगेटिव कंडीशनिंग इनकी कर देते हैं तो एवर्जन थेरेपी इज वेरी मच इफेक्टिव. अब अगर शराब पीने से हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, नशा नहीं चल रहा है, शराब पी रहे हैं, उल्टी होनी शुरू हो जा रही है, तो शराब पी के कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, फिर शराब पीने से आदमी अपने आप को विड्रॉ कर लेता है. So this is designed to reduce the targeted behavior, for example drinking alcohol, even when the stimulus with the undesirable response is not taken, that is medication. मतलब हर चीज के लिए मेडिकेशन ही नहीं जरूरी है. मतलब यहाँ पे चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग, तो काउंसलिंग डज नॉट refer or recommend the medication in the form of chemical substances. So we are not giving any tablet, any medication for the removal of drinking alcohol, but we are inducing this aversion therapy for the for overcoming from the risk of binge drinking.
Fourth is modeling. Modeling is used as a treatment that involves improving interpersonal skills such as communication and how to act in a social setting. Techniques involved in modeling are live modeling, that involves the client watching a model such as the counselor perform a specific behavior, the client then copies this behavior. लाइव मॉडलिंग क्या होती है, इसमें जो काउंसलर है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव से कुछ बोल सकता है या खुद कुछ ऐसा बिहेवियर परफॉर्म कर सकता है जो डिजायरेबल हो और जिस बिहेवियर को वो एक्सपेक्ट करता है कि अभी ये बिहेवियर अब क्लाइंट भी करेगा. सो दिस इज नोन एज द लाइव मॉडलिंग. Live modeling is following your live model, whatever behavior he or she is performing. Second is modeling, involves the client watching a behavior indirectly such as video. लाइव मॉडलिंग एंड मॉडलिंग में डिफरेंस क्या है? लाइव मॉडलिंग में हमारे सामने हो रहा होगा, मॉडलिंग रिकॉर्डेड वीडियोस हो सकते हैं या यूट्यूब में वीडियोस हो सकते हैं या हमने कहीं पहले कभी देखा उनको मोबाइल, मतलब रिकॉर्डेड होते हैं. Third is role playing, is where the counselor a behavior with the client in order for the client to practice the behavior. Role playing में कोई ऐसा रोल जो सपोजिंग कोई हमारे सामने ऐसा आता है, जैसे मान लो बच्चा आता है जो अपने पेरेंट्स से बहुत परेशान है कि उसकी माँ बहुत टोकती है, फादर बहुत मारते हैं, बहुत पनिशिंग बिहेवियर है एंड that child is very much dissatisfied with the behavior of his parents. तो यहाँ पे रोल प्लेइंग में बच्चे को पेरेंट्स का रोल दिया जाता है, बच्चे को फादर का रोल दिया जाता है और कोई दूसरा बच्चे का रोल प्ले किया जाता है और वो बच्चा उसी तरीके से पैनिक करता है, शिकायतें करता है जैसे वो बच्चा जो इस समय फादर के रोल में है. तो उसको रियलाइज होता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ माय पेरेंट्स टू. सो दीज आर द मॉडलिंग टेक्निक्स. Next is the participant modeling, involves the counselor modeling the behavior and then getting the client to practice the behavior while the counselor performs the behavior. Participant modeling में जो counselor और client हैं दोनों participate करते हैं in doing or performing a particular type of behavior. Then covert modeling is where the client cannot watch someone perform the behavior, but instead the counselor gets the client to imagine a model performing a behavior. This is called covert modeling. Overt और covert क्या होता है? Overt behavior are all those behavior which are observable, जिन्हें हम देख सकते हैं. आप किताब के पन्ने फाड़ रहे हैं, किताब के पन्ने पलट रहे हैं, this is your overt behavior. आप imagine कर रहे हैं कि आप किताब के पन्ने फाड़ रहे हैं, किताब के पन्ने पलट रहे हैं, this is the covert behavior. Covert behavior जो mind में होते हैं and which are not observable by any observer. So covert modeling में behavior को covert level पे model करने के लिए दिया जाता है. तो these are the techniques of modeling. Now, in nutshell, we can conclude about behavioral approach that behavioral counseling theories hold that people engage in problematic thinking and behavior when their environment supports it. This is very important focus of behavioral therapy. Environment is the prime factor. अगर किसी बच्चे के अंदर personality negative है, that means उसका environment उसे support कर रहा है. फैमिली में अगर एक बच्चा बहुत प्रॉब्लमेटिक बच्चा है, बहुत मतलब बिहेवियरल प्रॉब्लम उसे बहुत हो रही है, इसका मतलब फैमिली में उसका पालन पोषण, उसका सोशलाइजेशन इस टाइप से हुआ है, उसकी फैमिली ने उसे सपोर्ट किया है उस फॉल्टी बिहेवियर के लिए, बट नाउ दैट फैमिली इज नॉट एबल टू कोप विद दैट प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर व्हिच वाज taught by the family itself to the children. So this is the prime focus of behavior approach, that people engage in problematic thinking and behavior when their environment supports it. When an environment reinforces or encourages these problems, they will continue to occur. Reinforcement की प्रॉब्लम है, अगर कोई बच्चा शैतानी कर रहा है लेकिन आप उसे ओवरलुक कर रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं, बच्चा है, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, बच्चे ने आपके पर्स से 5 रुपए निकाल के चॉकलेट लिया है, कोई बात नहीं, आपने इसको एज अ मतलब बुरा बिहेवियर आइडेंटिफाई नहीं किया, तो इस टाइप से ये चीजें फिर इंटेंसिटी में बढ़ती जाती हैं. तो आप जितना उस पर्टिकुलर बिहेवियर को इनकरेज करोगे उतनी वो प्रॉब्लम कंटिन्यू होती जाएगी, मतलब उतना वो बिहेवियर स्टैम्प्ड इन होता जाएगा. दैट विल बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट child's personality. Behavioral counselor work to help clients identify the reinforcement that are supporting problematic patterns of thinking and acting and replace them with alternative reinforcement for more desirable pattern. तो अब behavioral counselor का रोल क्या होता है
कि वो इन्वायरमेंट से इन सपोर्टिंग जो लोग इन प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को सपोर्ट करते हैं, सबसे पहले उन्हें आइडेंटिफाई करना। जैसे अगर मान लीजिए पेरेंट्स को ही दिक्कत है कि बच्चे में बहुत बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, बच्चा बदतमीज है, बच्चा चिल्लाता है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, और उस प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर का जो ओरिजिन है उसको आइडेंटिफाई करना और उसके बिहेवियर को चेंज करना। क्योंकि अगर हमारे पेरेंट्स की वजह से हम बहुत प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर में इन्वॉल्व हैं, तो जब तक पेरेंट्स अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे, जब तक वो हमारे नेगेटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स करते रहेंगे पॉजिटिवली, तो हमारा बिहेवियर क्यों चेंज होगा? आई एम कंफर्टेबल विद दिस बिहेवियर। अगर हम अपने पेरेंट्स पे चिल्ला रहे हैं और हमारे पेरेंट्स से ओवरलुक कर रहे हैं कि चलो ठीक है, जो कर रहा है सही है, मैं मदर हूँ, एज ए मदर मेरी ये ड्यूटी है, तो बच्चे में तो ये एक्टिविटी इनकलकेट होंगी ना। अगर उसी टाइम पे हमने उसे रोकना शुरू कर दिया, मान लो वो बच्चा बदतमीज हो गया, बट इट इज नेवर टू लेट। आप अपने उस बिहेवियर को आइडेंटिफाई करिए एंड नाउ चेंज द रीइंफोर्समेंट patterns that are engaged in the development of that problematic behavior. अब ये बच्चे की एज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने रीइंफोर्समेंट को कैसे चेंज करेंगे। अब जैसे बच्चा छोटा होता है तो वो आप पहले चॉकलेट दे रही थी, अब चॉकलेट नहीं देंगी, तो उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है। अब टीनेजर बच्चा चॉकलेट से तो नहीं मानेगा ना, तो अ पेरेंट और द प्रॉब्लमेटिक सोर्स शुड एंड मस्ट identify how he or she can change the reinforcement pattern of the child so that he can uncondition his faulty condition behavior. Now, advantages of behavioral therapy. This is the evaluation of behavioral therapy. Like every therapy, behavioral therapy is also having some advantages and limitations. So, advantage, we learn to act on the word rather than being passive towards it. This is the most important ingredient of behavioral therapy, कि we are not the passive victims of our environment. We are learning some behavior through the process of reinforcement. हम कोई behavior करते हैं, अगर उसके लिए हमें negative reinforcement मिला तो वो activity stamped out हो जाती है। अगर हम कोई behavior कर रहे हैं तो हमें positive reinforcement मिल रहा है तो वो behavior stamped in हो जाता है। तो it is all depending upon our behavior, what type of reinforcement we are receiving from our environment. So we elicit the appropriate response from our environment. So we no longer passively react to life like we have done all our lives. Second, behavioral changes brings physiology. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी इज अ पार्ट ऑफ बिहेवियरल थेरेपी। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। इट चेंजेस द न्यूरल पाथवे एसोसिएशंस इन द ब्रेन। दिस चेंजेस हाउ वी फील अबाउट आवरसेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड अस परमानेंटली। द ब्रेन चेंजेस आफ्टर वी टेक एक्शन। Brain imaging technology proved that the human brain changes as a result of CBT. CBT जो एक टाइप है बिहेवियर थेरेपी की, CBT में we have to change our cognitions, and once our cognition is changed, all the brain physiology has already been changed. और ये scientifically proof हो गया है MRI के थ्रू या PET scan के थ्रू कि जब हम मतलब हमारे behavioral pattern change होते हैं, हमारे cognitions change होते हैं, तो all the brain activity, brain pathways also get changed. So this CBT and this behavioral therapy is having a scientific basis behind this. Third is we are energized to keep moving forward against acting against our fear in a step-by-step fashion with cognitive help and support helps us to build and keep momentum. Matlab life is a process of learning. We have learned some bad things. Now we have to relearn the good things. So life is all about learning. We are actively involved in the process of learning, forgetting, learning, and relearning. Fourth, progress against social anxiety occurs faster. With the right cognitive framework, we are able to be rational about our progress, so we can move ahead with our behavioral experiments. Fifth is we no longer avoid events. Anxiety no longer restricts what we do in life. Behavioral therapy changes how we act. Instead of avoiding situation and other people, we learn to feel comfortable and confident because we took action. This is the वेरी पॉजिटिव साइड ऑफ बिहेवियरल थेरेपी कि इसमें हम डिनायल नहीं करते हैं। अगर हमें कॉकरोच से फोबिया है तो वी आर गोइंग टू फेस इट,
and we will try to overcome our phobias through the process of different type of techniques of behavioral therapy or behavioral approach. So this is a fighting approach. Here we are acting to overcome our fears, to learn the new behaviors which are more healthy for our personality and for the society. So this is a process of constant learning and constant activation from the part of the individual. But there are some limitation of behavioral therapy as well. Behavioral therapy is a natural extension and application of many of Skinner's view focusing on observable behavior. This criticism states that behavior therapy ignores the importance of self or self-consciousness to the exclusion of overt behavioral responses. So every approach has two faces. मतलब जो इसका एडवांटेज है उसी को लिमिटेशन के रूप में ले रहे हैं कि जब हम सिर्फ ओवर्ट बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो व्हाट अबाउट कोवर्ट बिहेवियर्स, हमारी थिंकिंग, हमारी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, हम जो सोच रहे हैं, हमारी वैल्यूज, ये सब चीजें तो कोवर्ट ही होती है ना, और ओवर्ट तो तब होती है ना जब हम उन्हें बिहेवियर के रूप में इम्प्लीमेंट करते हैं। बिहेवियर ही तो हम देखते हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, दैट इज ऑल कोवर्ट। तो कोवर्ट के ऊपर कोई फोकस नहीं है, दैट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ बिहेवियर थेरेपी कि बिहेवियर थेरेपिस्ट डू नॉट टॉक एनीथिंग अबाउट कोवर्ट रिस्पॉन्सेज और कोवर्ट थॉट्स। बिहेवियर थेरेपी ट्रीट सिम्टम्स रादर देन कॉजेस. The psychoanalytic assumption is that early life events are the sources of present difficulty. Instead, the behavioral practitioner emphasizes changing environment circumstances and how these environmental forces reinforcement particular behavior. So, behavior therapy का एक और criticism है कि ये symptoms के basis पे diagnose करती है और ये root cause पे नहीं जाती है. तो जब तक आप root cause पे नहीं जाओगे, तो अगर रूट कॉज में कोई प्रॉब्लम है तो ऊपर ऊपर से आप सिम्टम्स के बेसिस पे उसका इलाज कर दोगे तो वो एक ना एक दिन फिर से रिवाइव करेगा, until and unless you treat the root cause of that particular problem. जैसे साइको एनालिसिस में वो बोलते हैं कि every problem is deep rooted in the early childhood या in our younger ages, मतलब it has some basis in our past. जो भी हमारी रियल प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनका कोई ना कोई ओरिजिन हमारी चाइल्डहुड में होता है जो कि अब इस फॉर्म में एक्सप्रेस होता है. But behaviorist has nothing to do with the past experiences or past life. They focus only on the present and the importance of environment. If environment changes, our behavior changes. If environment supports or reinforces us positively to do something, we learn the faulty behavior as well as we learn the healthy behaviors as well. So it all depends upon the nature of reinforcement कि हमारा किस टाइप का behavior positively reinforce हो रहा है. If our faulty behavior is being positively reinforced, we will learn the faulty behavior and vice versa. So this is the prime focus of behaviorism. So the critics say that this is the treatment of the symptoms, not the causes. Behavior therapy involves the use of control and manipulation by the therapist towards the client. The therapist assumes a position of power with the client, whether he or she, through the process of reinforcement, can potentially manipulate the client's behavior responses. अब ये client centered therapy के just against हो जाती है. Client centered क्या कहती है? Client centered therapy is a non-directive therapy. उसमें काउंसलर का कुछ रोल नहीं होता. जो कुछ करना है क्लाइंट को करना है, वो उसे अपने बिहेवियर को डायरेक्ट करना है, बस काउंसलर प्रोब करता है, उसके डायरेक्शन को मोल्ड करता है और उसी से बातें निकलवाता है. जबकि बिहेवियर थेरेपी में जो काउंसलर है वो एक पावर की पोजीशन में होता है कि वो जैसे रीइंफोर्समेंट देगा अगले का बिहेवियर अकॉर्डिंगली मोल्ड होगा. तो मतलब जो क्लाइंट है ही इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट ही इज गेटिंग फ्रॉम द काउंसलर टू द पर्सन फ्रॉम विच ही और शी इज गेटिंग द रीइंफोर्समेंट. तो उसका बिहेवियर कैसा होगा ये इन्वायरमेंटल रीइंफोर्समेंट पे डिपेंड करता है, उसके ऊपर कुछ नहीं डिपेंड करता. अगर वो अच्छा बिहेवियर कर रहा है लेकिन उसे मार पड़ रही है, निगेटिव रीइंफोर्स मिल रहा है, तो वो अच्छा बिहेवियर करना छोड़ देगा.
अगर एक बच्चा बहुत रिस्पेक्टफुल है लेकिन उसके पेरेंट्स को ये पसंद नहीं है कि वो डोसाइल सा और रिस्पेक्टफुल रहे, वो उसको डांटते हैं कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि जैसे मतलब बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से, तो उसका वो बिहेवियर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की वजह से सबसाइड कर जाएगा। तो जो काउंसलर है, ही द काउंसलर इज ऑलवेज इन द अपर हैंड, इन द अपर पोजिशन, and the person or the client, he is the victim of the reinforcement, positive or negative, whatever he or she is getting from the counselor. So this is the third limitation of the behavioral therapy. So this was all about behavioral therapy. Behavioral therapy focuses on overt behavior, it is focuses on learned behavior, focus on present time, and focus on environmental stimulus. And there are so many techniques of behavioral therapy, and in spite of having so many advantages, behavioral therapy have some limitation as well that I already have discussed. So this is all for the today's lecture. ये आपके रेफरेंसेस हैं जो मैंने कंसल्ट किए हैं while making this lecture, and thank you for now.